Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening of everyone of the class 12th on the same platform of the Life Physics PK channel. So as you all know that we were dealing on the chapter or the unit named as the magnetic effect of electric current, and in the previous lecture we introduced the second law, or you can say the another law which is very much helpful to find out the magnetic field for the different types of the situations. So first of all, that law was Ampere circuital law. Means in the previous lecture we introduced the ACL, Ampere circuital law, and we started the applying this Ampere circuital law on the different cases. Means we started the applications of the ACL. तो जैसे applications of Biot-Savart's law थे, वैसे ही हमारे पास application of Ampere circuital law है. So the first application in the previous lecture that we started were the magnetic field due to the infinite straight current carrying wire. तो पहला application आपके पास ये available था, and that first application हम लोगों ने formula derive किया, B was mu naught I by 2 pi r. After that we introduced the solenoid and we find out the magnetic field due to the solenoid, and the magnetic field due to the solenoid, if I revise, it is mu naught small n I, or you can say mu naught capital N I by L, where mu naught stands for permeability, I stands for the current, and small n represents the number of turns per unit length. But if we write down this number of turns per unit length, so it can be written as capital N by N, where capital N stands for total number of turns and L represents the length of the solenoid. So this was the about the solenoid. Now we are going to study two more applications of the Ampere circuital law. तो आज हम लोग इसे done करेंगे, and at the starting now I am telling you that this is the only one single unit. तो जैसा हमारा बुक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक ये हमारा एक सिंगल यूनिट है, पूरा सिंगल यूनिट है, बुक में आपको यही मिलेगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी था. बट यू रिमेंबर आई डिवाइडेड द इलेक्ट्रिसिटी इन द टू पार्ट्स. मैंने इलेक्ट्रिसिटी को दो छोटे हिस्सों में डिवाइड किया ताकि हम फिजिबली स्टडी करने में हम मेंटली ये कैपेबल हो कि हम लोग दो हिस्से को पढ़ रहे हैं. बिकॉज एक बड़े हिस्से को स्टडी करना एक साइकोलॉजिकली इंपैक्ट अलग डालता है कि ये अच्छा ये चैप्टर पढ़ना है, बट ये चैप्टर बहुत लेंथी है. अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स को कंप्लीट वन यूनिट की तरह अगर स्टडी करते हैं, सो इट वुड साइकोलॉजिकली इंपैक्ट योर माइंड, और आपके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि ये यूनिट बहुत लंबा है. बट if we divide that electrostats into the chapters, चाहे हमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा करने पड़े बट छोटे छोटे हो जाए, लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो अगर हम इन्हें टुकड़ों में पढ़ते हैं कि ओके ऑन द फर्स्ट डे आई विल स्टडी इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑन द सेकंड डे आई विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड डे पोटेंशियल, फोर्थ डे कैपेसिटेंस, तो आप 4 दिन में उस यूनिट को पूरा खत्म कर सकते हैं जब आप इन फ्यूचर रिवाइज करने जाएंगे. तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन द सफिशिएंट टाइम हम लोग डील करेंगे, बट उसमें आपको थोड़ा अपने आप को स्पीडी में रखना है. तो जैसे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, प्लीज उन्हें सून एज पॉसिबल फिनिश करने का कोशिश कीजिए. उनसे जो भी डाउट्स आपके पास आ रहे हैं उन डाउट्स को क्लियर आउट करने का कोशिश कीजिए, तभी हम सिलेबस को एंड तक पहुंचा पाएंगे इन अ इफेक्टिव मैनर. Similarly, I divided the electricity into two part. One part, अब बुक में ऐसा कुछ नहीं है बट मैंने डिवाइड किया. सो अप टू द सेल, जहां तक हम लोगों ने सेल को स्टडी किया, सीरीज, पैरेलल एंड द मिक्स्ड ग्रुपिंग, वी यूज्ड टू कॉल दैट एज अ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1. And after this we have Kirchhoff law, Wheatstone bridge, meter bridge and potentiometer. We will call this as a electricity part 2. तो इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा पार्ट में पढ़िए. Now the magnetic, since आप जानते हैं first 3 units are the lengthier units, तो इसलिए in the magnetic हम एक बार फिर से डिवीजन करते हैं. And the first division is, जो हम पहला डिवीजन करने जा रहे हैं वो आज के लेक्चर्स तक है. So today's lecture जब फिनिश होगा, when today's lecture is going to finish, so at the end I will conclude you officially that magnetic part 1 is finished. So मैं पहले एक बार आपके दिमाग में डाल देता हूँ पार्ट 1 है क्या, मैंने इसे डिवाइड क्यों किया. तो आप स्टार्टिंग से देखिए आपने क्या पढ़ना शुरू किया इस पार्ट में. We started that whenever there is a current there would be
अ मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोगों ने स्टार्ट किया बायट-सेविट्स लॉ से। तो बायट-सेविट्स लॉ ने हमें किसका फॉर्मूला दिया? B का। ओके, फॉर डिफरेंट केस। तो पहले B का एक जनरल फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल sin थीटा बाय r स्क्वायर, देन B ड्यू टू द सर्कुलर वायर एट द सेंटर। तो सर्कुलर सेंटर पे क्या निकाला? B निकाला। फिर B ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, B ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, then B due to half infinite, then we enter into the B due to the circular loop but along the axis of the circular loop. ओके, तो यानी हम सब B पे काम कर रहे थे। फिर हमारे पास आया ACL। तो पहले था बायट-सेविट्स लॉ, BSL, नाउ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमने फर्स्ट फिर से क्या निकाला? इनफाइनाइट वायर, बट क्या निकाला? B, अगेन B। देन मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड। यहां तक हमारा काम हो चुका है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉरॉइड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द थिक वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द थिक वायर। सो आज हमें दो केसेस करने हैं, बट उन दोनों केसेस में करना क्या है? फिर से हमें मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस होल इज योर पार्ट 1। तो अब आप देखिए पार्ट 1 में क्या चीज चल रही है। पार्ट 1 में सारे B के ही फॉर्मूले हैं, और यही चीज इस मैग्नेटिक चैप्टर को थोड़ा सा ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बनाती है, जो आपको फील होगा। क्या? कि हमारे पास B यानी मैग्नेटिक फील्ड के इतने मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं। दिस मेक्स दिस चैप्टर एंड दिस सेक्शन एज अ ट्विस्टेड एंड द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। तो आज हम B निकालना फिनिश करेंगे, और यही हमारे B के पॉसिबल फॉर्मूलेज होंगे जो हमारे CBSE और कंपटीशन, आइदर यू आर डीलिंग और आइदर यू आर थिंकिंग फॉर द नीट और JEE मेंस, आपके लिए यहीं तक है अवेलेबल। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द पार्ट 1। अब जब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, व्हेन वी विल स्टार्ट द पार्ट 2, सो इन द पार्ट 2 हमारा कोई B का डेरिवेशन नहीं होगा। तो क्या होगा वो हमें पार्ट 2 में पता चलेगा, बट B अभी तक डिराइव कर लिया। So that's why on the study और analyzation, ये सब देखने के बाद I decided कि इसे मैं पार्ट 1 का नाम देता हूँ। और जब भी आप इन फ्यूचर या टेस्ट के लिए अब जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए that in one complete day, अगर मुझे मैग्नेटिक रिवाइज करना है तो 1 complete 24 hours I am going to study the B। तो 24 घंटे में B निकालना सीखूंगा, उसके न्यूमेरिकल्स करूंगा, उसके डेरिवेशंस, उसके डायग्राम, उसके कॉन्सेप्ट, किसके? B के, मैग्नेटिक फील्ड के। तो पार्ट 1 फिनिश। पार्ट 2 जो भी आगे आएगा हम उसे चेकआउट करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई आई होप आई एम क्लियर कि पार्ट 1 क्या है, और आज हम इस पार्ट 1 को फिनिश करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर एप्लीकेशन ऑफ ACL, एंड आई थिंक दिस इज योर थर्ड, एंड थर्ड इज magnetic field due to toroid। ओके, टॉरॉइड, TOROID, टॉरॉइड। और अगर मैं आपसे बोलूं सो टॉरॉइड इज द कजन ब्रदर ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का ही भाई है, ब्रदर है, उसी से ही रिलेटेड है, उसी की फैमिली में आता है। तो व्हाट वाज द सोलेनॉइड? अगर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। सो सोलेनॉइड व्हेन अ सॉफ्ट आयरन कोर, यानी जब भी आपने कोई मटेरियल डाल दिया है, एंड अराउंड दैट यू आर टेकिंग द वेरियस नंबर्स ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कॉपर वायर अराउंड इट। तो आपने इसके चारों तरफ कॉपर वाइंडिंग की, यू कनेक्ट विद द बैटरी, द करंट पासेस थ्रू द कॉपर वायर एंड इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। और इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, B is equal to mu naught small n I। But this was the magnetic field where it was the magnetic field inside the solenoid। ये solenoid के अंदर का magnetic field था। So what was the magnetic field outside the solenoid that we take? We will not study the magnetic field outside the solenoid। हम उसे नहीं पढ़ेंगे। Why? You have the reason, because outside magnetic field are weaker and non-uniform as comparison to inside। इस बात को बार बार याद रखिए, why the outside magnetic field is not considered। तो ये सोलेनॉइड था। अब टॉरॉइड क्या है? It was straight, उसका कुछ लेंथ है, L was the length of that,
अब आप एक काम कीजिए, व्हाट विल बी हैपन, सो वी आर गोइंग टू चेंज द डिजाइन। हम लोग केवल डिजाइन को बदलने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे। नाइदर वी विल चेंज दी सॉफ्ट आयरन कोर, हम अंदर से सॉफ्ट आयरन को नहीं हटाते। नाइदर वी चेंज दी मटेरियल ऑफ दी वायर, नाइदर वी चेंज दी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स की कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और नाइदर वी विल चेंज दी करंट। तो ना तो मैंने करंट बदला, ना नंबर ऑफ वाइंडिंग, ना नेचर ऑफ मटेरियल, कुछ नहीं बदला। The only thing that we are going to change is the shape because of the design. अब ये straight था, अब एक काम कीजिए, दोनों ends को please meet कर दीजिए। So what you are going to do? We are going to meet both the ends. हम दोनों ends को meet करने वाले हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास। तो आप लगभग ये बोल सकते हो, लगभग टच भी हो सकता है। So कुछ डायग्राम, कुछ बुक्स में ये टच होता है, कुछ में थोड़ा सा गैप रख देते हैं। ओके, सो यहां से वायर था, तो हमारा वायर यहां से, सो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म इन दिस मैनर। सो द सेम वायर, सेम वाइंडिंग, सेम मटेरियल, सब कुछ वही है। नथिंग इज बीइंग डिफरेंट इन द सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। द ओनली थिंग व्हिच इज डिफरेंट इज द करंट। So the thing was here the current I, and it is been entering and it has been existing. So this is your, what is that? Toroid. ये है आपका toroid, the circular form of the solenoid. Solenoid का circular form को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? Toroid. So we have to study this shape as our third application of the Ampere circuital law. So I hope, am I clear with the design purpose? तो आई थिंक मैं अगर आपसे एक लॉकली और अगर डायरेक्ट वे में बात करूं, इसमें और इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द सोलिनॉइड एंड टॉरॉइड? ओनली शेप। तो शेप का फर्क है, हमने ना तो म्यू को, परमिएबिलिटी को बदला, ना ही हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बदला, ना ही हमने करंट को बदला। हमने सारे फिजिकल पैरामीटर सेम रखे, बस जो वायर या जो सोलिनॉइड पहले स्ट्रेट था, हमने उनके दोनों एंड्स को नीचे आके मिला दिया। ओके, तो हमने दोनों एंड्स को मिला दिया, तो वो स्ट्रेट क्या बन गया? सर्कुलर बन गया, और इसे ही टॉरॉइड बुलाना शुरू किया। तो अब बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, ओके, वी विल डिराइव दैट, वी विल डू द डेरिवेशन, बट बिफोर डूइंग द डेरिवेशन मैं कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर कर देना चाहता हूं। So magnetic field due to solenoid, it depend upon nature of medium. Do we change the nature of medium? Means medium अगर बदलेंगे तो permeability बदलेगा। तो क्या हमने permeability बदला? I think we haven't changed. Second factor on which it depends was the number of turns per unit length. So do we change the number of turns per unit length? क्या हमने टर्न्स के नंबर या लेंथ को चेंज किया? नहीं सर, जो पहले स्ट्रेट था बस उसे बेंड करके सर्कुलर बना दिया, तो लेंथ भी उतना ही है, नंबर ऑफ टर्न्स भी उतना ही है। सेकंड फैक्ट, थर्ड फैक्टर, डू वी चेंज द करंट थ्रू द बैटरी? नो सर, हमने बैटरी भी वही रखी, सब कुछ एज इट इज वही है। It means magnetic field inside the solenoid depends upon three factors: permeability, number of turns per unit length and current. और इन तीनों फैक्टर को हमने सेम रखा है टॉरॉइड में भी, वही का वही रखा है, बस शेप बदल दी। सो क्या मैग्नेटिक फील्ड बदलनी चाहिए इनसाइड द टॉरॉइड? आई थिंक इट शुड नॉट बी चेंज। ओके, वो हम डिराइव करेंगे, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो अगर सारे पैरामीटर वही हैं, परमिएबिलिटी वही है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स वही है, करंट वही है, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द टॉरॉइड का फॉर्मूला फिर से क्या रहने वाला है? म्यू नॉट स्मॉल n। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सोलिनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर द टॉरॉइड इनसाइड दोनों सेम होता है, क्योंकि वही तो है, दोनों भाई है, दोनों रिलेटिव है, तो वही चीज दिखाएंगे। बट हियर द नंबर ऑफ टर्न्स, small n stands for number of turns per unit length. So let capital N is the number of turns, और इसकी लेंथ क्या है? m, क्योंकि वो स्ट्रेट था। बताइए यहाँ पे small n stands for क्या होना चाहिए? So small n stands for number of turns per unit length. Definitely it is number of turns per unit length, और length l ही है, but it is in the shape of circle. इसकी शेप में है, सर्कल की शेप में है, और सर्कल की शेप मीन सर्कुलर शेप की लेंथ को क्या बुलाते हैं? व्हाट यू कॉल द लेंथ ऑफ द सर्कुलर शेप? सर्कमफेरेंस।
और circumference is always represented in terms of the radius of the circle. तो बताइए यहां पे लेंथ क्या होना चाहिए? So the length should be the circumference and circumference is 2 pi r, क्योंकि सर्कुलर है तो इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रेडियस जरूर होगा. So this would be the new formula for the toroid. तो toroid का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? B toroid. It would be mu naught capital Ni by 2 pi r. जहां पे यहाँ क्या था? mu naught capital Ni by n. This is the only difference between the formula for the toroid and solenoid. तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है. This is the thing that I have given you the overview. Let's have the derivation फॉर्म में आते हैं. बट इससे हमें एक आइडिया हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि हमारा फॉर्मूला क्या आने वाला है. न्यूमेरिकल के लिए थोड़ी अच्छी अप्रोच मिलती है. जब आप टोरॉइड या फिर सोलिनॉइड के न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो आपको एक बेनिफिट तो हो गया कि दोनों के फॉर्मूले सेम है. म्यू नॉट स्मॉल एन आई, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन दोनों सेम है, बट अगर कैपिटल एन यूज करते हो तो इसकी लेंथ को एल बोलेंगे और इसकी लेंथ को 2 पाई आर बोलेंगे, क्योंकि ओके ये 2 पाई आर इस लेंथ के ही इक्वल है. बट डेफिनेटली ऑब्वियस ही बात है, जब आप किसी सर्कुलर शेप को पढ़ते हो तो डाटा हमेशा आपको रेडियस की फॉर्म में गिवन होता है. बट जब आप किसी स्ट्रेट चीज को पढ़ते हो तो उसकी लेंथ हमेशा डायरेक्ट गिवन होती है कि लेंथ इतना है. सर्कुलर का लेंथ कभी देते हैं? कभी भी नहीं देते कि लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर इज दैट मच. वो कभी भी लेंथ नहीं देता सर्कुलर वायर की, वो सर्कुलर वायर की क्या देता है? रेडियस देता है. तो इसलिए हमें उसे रेडियस की फॉर्म में रखना पड़ेगा. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टोरॉइड. तो चलिए टोरॉइड को पढ़ना शुरू करते हैं और इसके एक्सप्रेशन और इसके डेरिवेशंस पे आ जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोरॉइड, द सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड. द सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड is known as toroid. उसे क्या बुलाएंगे? टोरॉइड बुलाएंगे. तो उसी का ही भाई है सोलिनॉइड एंड टोरॉइड, बोथ बिलोंग्स फ्रॉम द सेम फैमिली. ओके, सो चलिए एक assumption पे काम करते हैं. Let us consider a toroid. क्या कंसीडर करें? A toroid वो of radius, let's suppose it is capital R ले लेते हैं. Okay, it doesn't matter. So let us consider a toroid of radius capital R and current capital I through it. Okay, having number of turns capital N. So thus number of turns per unit length. Thus नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? स्मॉल एन कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टोरॉइड? इट शुड बी द 2 पाई आर. ओके, और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, लास्ट लेक्चर, इन द सोलिनॉइड मींस द थिकनेस और द एरिया ऑफ द सोलिनॉइड इज नॉट बीइंग मैटर. तो ये कितना है ये मैटर नहीं करता. तो इसका रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है, सो नोबडी विल कंक्लूड कि सर इसका इनर रेडियस अलग होगा और आउटर रेडियस. सो इतना ज्यादा थिक नहीं है, ऑब्वियस सी बात है. और एज कंपैरिजन टू लेंथ, द एरिया और द थिकनेस ऑफ दी जो हम लोग सोलिनॉइड ले या टोरॉइड ले, वो वेरी स्मॉल है. तो इसलिए आप बोल सकते हो द एरिया वुड बी वेरी स्मॉल. एरिया का मतलब मैं इस वाले एरिया, इस वाली थिकनेस की बात कर रहा हूं, प्लीज. ओके, सो दैट्स व्हाई हम लोग चाहे आप इनर या आउटर, तो हम लोग उस रेडियस को नियरली एजम्पशन आर ही लेके चलेंगे. ओके, तो एक पतला सा वायर है आपके पास, तो एक आप बोल सकते हो पतली चीज है, यानी जिसमें लेंथ मोर कंसीडरेबल है एज कंपैरिजन टू एरिया और थिकनेस. तो हम थिकनेस को नेग्लेक्ट करके चलेंगे. सो द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैपिटल N by 2 pi r. Now we have to find out the magnetic field, and here in the case of toroid हम 2-3 केस बनाते हैं. Case number 1, when the point is here. तो ये पॉइंट कहाँ है? A. A is within the toroid. Toroid के अंदर. Okay. This is your point again B. Okay. तो इस पॉइंट को B नाम दे देते हैं. So B point, चलो B में आप कंफ्यूज हो जाएंगे. So let's suppose it is being A. This is being A dash. ओके, और एक और पॉइंट ले लेते हैं A डबल डैश.
So we have the three different locations. First location within the toroid, okay. Second is inside the toroid, toroid के अंदर है, and last one is outside the toroid. तो हम तीनों केसेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोशिश करेंगे. And let's start with case number 1. At point A, according to Ampere's circuital law. So let us apply the Ampere's circuital law at A point. इस point पे A लगाते हैं, means Ampere's circuital law. But you all know that Ampere's circuital law can only be applicable for an imaginary loop. क्योंकि Ampere's circuital law states that the line integral of magnetic field over the closed loop is mu naught times of total current effect. तो चलिए यहाँ पे एक Amperian loop ले लेते हैं. So the first Amperian loop, okay, A point के लिए. So thus apply the Ampere's circuital law. So B vector dot dl vector. We are talking about the first loop. ये हमारा पहला loop है. It should be equal to mu naught times of total current effect. Okay. So सीधा सा बात है. जब आपका डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो B इंटू DL इंटू कॉस. डेफिनेटली लूप कैसा है? सर्कुलर, तो लेंथ वेक्टर अलोंग द टेंजेंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो भी अलोंग द टेंजेंट. सो इट वुड बी 0 म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इफेक्ट. तो बताइए फर्स्ट लूप ने कितना करंट इफेक्ट इनक्लोज किया? 0, क्योंकि यहां पे कोई करंट इफेक्ट इनक्लोज नहीं है. So it would be 0. So B into DL is equal to 0 or B is equal to 0. So what is the magnetic field within the toroid? Means toroid के अंदर magnetic field कितना? Within it is being 0. तो यहाँ पे magnetic field 0. Now the case number 2. Okay, at point A dash. At point A dash for loop second, apply Ampere's circuital law. Please apply the Ampere's circuital law for A dash point. अब बताइए A dash point कहाँ पे है? Within the toroid. Okay, sorry, this was within the toroid, so it was inside the toroid. Inside the toroid, जैसे सोलेनॉइड के अंदर था. तो टोरॉइड के अंदर आ जाते हैं. सो यहाँ पे आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हो तो दैट एम्पीरियन लूप अगेन एक सर्कुलर होगा, बट द लूप विच इज पासिंग फ्रॉम दी टोरॉइड, एक ऐसा लूप बनेगा जो टोरॉइड के अंदर से पास होगा. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? ओके, इस टोरॉइड का लेंथ वेक्टर कहाँ होगा? अलोंग दी टेंजेंट. यू ऑल नो दैट, क्योंकि सर्कुलर है. और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगी? वो भी अलोंग दी टेंजेंट. ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस किया. ये मैंने आपसे फर्स्ट एप्लीकेशन, इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम दैट्स व्हाई द लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अलोंग दी टेंजेंट, प्लीज स्विच बैक टू द प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर पे जाइए and check out the first application of Ampere's circuital law where I explain both the factors. Okay, so I will not take that much time here क्योंकि वो already है. और अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार वो प्लीज उसे रिवाइज करके देखिए. So again we will apply the Ampere's circuital law for the loop 2. So B vector dot dl vector for loop 2 is equal to mu naught times of total current effect. Current का total effect. So here loop number 2, B into dl into cos 0 degree mu naught times of total current effect would be n times of I. I stands for the current passing through the loop, but n are the total number of turns. तो अगर n number of turns है और I current पास हो रहा है तो current का total effect कितना होगा? Please, the total effect of the current, it is not the total current. करंट तो I है, बट उस I करंट का जो इफेक्ट है वो n गुना बढ़ जाएगा. यही एडवांटेज है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो करंट का जो इफेक्ट है, जो करंट जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाने वाला है वो इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा. So due to that current, the magnetic effect increases. That's why we write the word total current effect.
इस बात को मैंने सोलिनॉइड में भी डिस्कस किया था। सो B इज द कांस्टेंट बिकॉज एम्पीरियन लूप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एम्पीरियन लूप वो लूप है जहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl फॉर सेकंड लूप म्यू नॉट कैपिटल Ni। ओके, we have to find out the dl. dl means small length, तो इंटीग्रेशन means total length, but किसका? लूप 2 का, और ये हमारा लूप नंबर 2 है। दिस इज योर लूप नंबर सेकंड। ओके, दिस इज आवर लूप नंबर 1 L1, ये हमारा L2 है। सो L2 का लेंथ कितना होगा? इट इज अ सर्कुलर लूप, और सर्कल का लेंथ कितना होता है? जो भी सरकमफेरेंस है, और इसका रेडियस कितना था? r, सो इट वुड बी b into 2 pi r म्यू नॉट कैपिटल Ni, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। ओके, तो आप इसे टॉरॉइड वर्ड लिख लीजिए। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द टॉरॉइड म्यू नॉट कैपिटल Ni by 2 pi r. Okay, and we all know that what is n by 2 pi r? It has been small n, so magnetic field for toroid is mu naught small n I. So that's why the magnetic field for the solenoid and toroid, the expression is same for the per unit length. अगर पर यूनिट लेंथ की टर्म में एक्सप्रेस करते तो वही आएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई, बट अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में करते तो वहां पे स्मॉल एन था कैपिटल एन बाय एल, यहां पे स्मॉल एन है कैपिटल एन बाय 2 पाई आर। गॉट इट? चलिए अब आ जाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, एट विच पॉइंट? एट पॉइंट ए डबल डैश, मींस outside the loop or outside the toroid. Okay, so you all know that since outside the magnetic field strength is weak, ये तो हम जानते हैं, is weak and non-uniform. Thus, B outside is being considered as nearly zero. फिर वही, ये तो हम जानते हैं कि बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर के कंपैरिजन में वीक होता है, सोलिनॉइड भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, तो इसके भी बाहर वीक और नॉन यूनिफॉर्म होगा, दैट्स व्हाई उस मैग्नेटिक फील्ड को भी जीरो। तो कंक्लूजन क्या पता चला? दैट विद इन द टॉरॉइड जीरो, आउटसाइड द टॉरॉइड वो भी जीरो, बट इनसाइड द टॉरॉइड इट वुड बी समथिंग, यानी टॉरॉइड के अंदर होगा वो भी कांस्टेंट, और वो भी कितना? म्यू नॉट स्मॉल है, बट यहां पे भी जीरो और यहां पे भी जीरो, तो दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यहां पे टोटल करंट इफेक्ट इनक्लोज ही नहीं किया इसलिए जीरो आया, पर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड वीक और नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए जीरो कंसीडर की, बट इनसाइड द टॉरॉइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। So what is the magnetic field inside the toroid? Mu naught small ni or mu naught capital Ni by 2 pi. So this is whole about the toroid, or you can say our third application of Ampere circuital law. So magnetic field for the toroid. तो मैंने आपको तीनों possible cases बता दिए। Case 1 when you are within the toroid, when you are inside the toroid and when you are outside it. तो तीनों possible cases मैंने रखे हैं। Now, if I talk about the examination, पेपर की बात करूं तो टॉरॉइड का डेरिवेशन आ जाता है, सोलिनॉइड का आता है तो ACL का यूज करवा लेता है, बट अगर वो टॉरॉइड का एक्सप्रेशन हमसे यूज करवा रहा है, if he is asking that obtain the formula for magnetic field inside the toroid, so he is asking specially, so most of the time 80 to 90% he asks magnetic field inside the toroid, वो टॉरॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। सो इसका मतलब ही इज आस्किंग ओनली अबाउट द केस नंबर 2। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, वी हैव द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस, इतना तो याद ही होगा। द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ वाज ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल था, अब देखो उसमें तीन केस बने थे, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, on the surface electric field and inside electric field, बने थे तीनों, outside, inside and on the surface। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं
क्या जरूरी है, आपने भी रिवीजन देखा होगा, टेस्ट में भी था और टेस्ट में ये न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन भी रखा था मैंने, दैट कि इट इज नेसेसरी कि वो हर बार तीनों ही केस पूछे? जरूरी नहीं है। हम अपने डेरिवेशन को बना रहे हैं विद ऑल पॉसिबल केसेस, बट हमेशा लट्टू की तरह काम नहीं कि टोरॉइड आया लग गए ए केस, सेकंड और थर्ड केस। मैंने आपसे पूछा इनसाइड निकालो, आप फर्स्ट भी कर रहे हो, थर्ड भी कर रहे हो, सो इट इज नॉट रॉन्ग कि आपने फर्स्ट और थर्ड किया तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, बट इट विल कंज्यूम योर टाइम। और दैट 3 आवर्स, जो वो आपके पास 3 घंटे है ना, 180 मिनट्स जो आपके पास हैं, these 180 minutes are going to be very crucial। और उन 180 मिनट्स में हर मिनट को बचा के काम करना, स्पीड में काम करना, इफेक्टिव वर्क करना, ये हमारा फ्यूचर डायग्नोस और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है। ये हम आगे सीखेंगे कि हम अपने पेपर का टेम्पटेशन कैसे करें जब हमारे पास पूरा का पूरा सिलेबस गैदर है। अभी तो आप लोग एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो, एक यूनिट का दे रहे हो, तो उसमें आपको फिजिबली होता है, आप 30 मार्क्स का टेस्ट है तो आई विल गिव यू द टाइम, मैं आपको टाइम देता हूँ नियर अबाउट 1 आवर 20 मिनट्स, ऐसा कुछ टाइम दे दिया जाता है आपको और आप उसे आराम से कर लेते हैं। बट जब पूरा सिलेबस होता है ना तो दिमाग सोचता है कि अब यहाँ से वहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है। तो वो टेक्निक और वो ट्रिक्स हम लोग लास्ट में सीखेंगे जब हमारे पास पूरा सिलेबस हमारी पॉकेट में। अभी आप लोग सिलेबस को पॉकेट में रखिए, कंटेंट को क्लियर कीजिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल्स को क्लियर कीजिए, अभी अपनी जेब को भरो, अभी इकट्ठा करो सारे के सारे पैसे। जैसे बात है ना, कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना है और अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर मनी एंड आइडिया। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास आइडिया है, आपका विजन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस वर्क करेगा। ये सीधा सा एक कॉमर्स की टेक्निक है। तो हम यहाँ पे भी अगर वही लगाएं, तो अगर हमें अपने गुड मार्क्स चाहिए, अगर आप एक एक्सेप्शन रिजल्ट बना के दिखाना चाहते हैं, और वी हैव द चांसेस, आपके पास पूरी लाइफ टाइम ये चांस रहेगा ये प्रूफ करने का दैट इन स्पाइट हम लोग एक डिफिकल्ट सिचुएशन से निकले थे जब हम 12th क्लास में थे। इस सिचुएशन को मैं भी अपनी लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला हूँ और आप भी नहीं भूलेंगे कि जब हमने जैसे ही 12th क्लास में एंट्री मारी, हम मार्च में जैसे ही एंट्री करने गए थे, हमारा लॉकडाउन हुआ। एक ऐसा लॉकडाउन जिसके बारे में हम नहीं जानते थे कितना चलने वाला है, क्या होगा। स्टडी एक अलग तरीके से हुई, हम टीचर के कांटेक्ट में नहीं थे, केवल ये यूट्यूब और वीडियो तरीका ही था हम एक दूसरे के साथ। और इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट मच डिफिकल्ट सिचुएशन, आप अगर एक एक्सेप्शन रिजल्ट देके जाते हैं, सो इट वुड बी द वेरी मच प्राउड मोमेंट। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। एक तो आपके सीनियर्स या आने वाले लोग, देखो एक तो उन्होंने सब पढ़ा, सारा काम किया और फिर वो एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और अगर आप उन्हीं के बराबर, उन्हीं के टक्कर में और उनसे ज्यादा अगर आप स्कोर करते हैं, और इन स्पाइट हैविंग दैट मच डिफिकल्टी, दैट शोज योर ट्रू डिग्निटी। ये आपकी अच्छी डिग्निटी और इंस्पिरेशन, कहते हैं ना, बिहेवियर को दिखाएगा दैट यू आर द वन, कि ये सिचुएशन होने के बाद भी आपने कितनी कामनेस से अपने आप को इतना रिफॉर्म किया, और ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। इस बात को आज आप याद कर लीजिए, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत बेस्ट होने वाला है अगर आप लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, तो आप लाइफ में हर किसी चीज को हैंडल कर जाएंगे। सो विद दैट नोट, अपने टाइम को सेव करना है तो अभी के लिए मटेरियल को इकट्ठा करो, बट मैं साथ के साथ बता रहा हूँ कि तीनों केसेस अलग अलग बताते हैं, यहाँ पे तीनों हैं, बट एग्जाम में वही करना है जो डिमांड में हो, जो पूछा जाए। ओके, सो विद दैट पॉइंट प्लीज नोट इट डाउन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टॉरॉइड। This is our third application. Done? Okay. Now we are going to deal with the last and the fourth application. Okay. Now let me clear one more thing. अब मैं आपसे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ. I am saying that this is your fourth application. मैं आपके पास इसे fourth application बोल रहा हूँ. I am saying that. Again, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट्स बहुत जगह ऐसी हैं जहां पे मैंने अपना काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, किसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके रखा है। नॉट दैट कि हमारा और उसका रिजल्ट अलग आएगा, रिजल्ट वही होते हैं, कॉन्सेप्ट, बट मैंने आपसे कहा ना, जो चीज समझ में आए, जिस प्रोसीजर से जाए, दैट इज द टेक्निक। और वो टीचर टू टीचर बदलती है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज ऐसे होनी चाहिए।
इफ यू आर गेटिंग सर कि नहीं सर आपने ये चीज पढ़ाया है, इट शुड बी लाइक दैट यू कैन गिव मी योर कमेंट्स। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब तक आप हमें अपने आइडियाज और अपने थॉट नहीं दोगे, हम लोग उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज गोइंग टू बी हैपन। सो ये हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है, बट क्लियरली इसके बारे में बता दूं, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ ACL कुछ NCERT में है ही नहीं। So there is nothing like the fourth application in the NCERT, ऐसा कुछ नहीं है। NCERT में ACL का 3 ही फॉर्मूलेज डिराइव किए गए हैं। फॉर्मूला नंबर 1 which has been derived, कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, ACL की एप्लीकेशन बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। तो सर ये फोर्थ कहां से आया? आप एक नया ही सिलेबस बढ़ा रहे हो। तो मैं सिलेबस को बढ़ा नहीं रहा, मैं उस पॉइंट को उठा रहा हूं जो NCERT में छुपा हुआ है, जो CBSE हॉर्स की तरह यूज करता है। तो आप इसे अपनी हॉर्स कैटेगरी का न्यूमेरिकल या डेरिवेशन डाल सकते हो। तो ये आपकी NCERT में डायरेक्ट नहीं है, बट दो स्टूडेंट जिनके पास NCERT है उन लोगों को प्लीज एक बार गो थ्रू जाना उस NCERT से जहां पे आपका ACL का सोलेनॉइड और टॉरॉइड खत्म है। जस्ट आफ्टर दैट you will find a in-text numerical, आपको एक in-text numerical मिलेगा, numerical अंदर का, in-text के अंदर, यानी एक्सरसाइज नहीं, टेक्स्ट के अंदर का जो numerical होता है, and that numerical is not a numerical, that numerical is itself a derivation। तो हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, हम ये सोचते हैं कि सिलेबस कंटेंट केवल वही है जो हमारा चल रहा है, जो भाई न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल, ये तो न्यूमेरिकल है, छोड़ो बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले अंदर का पढ़ते हैं। बट हम कई बार भूल जाते हैं कि कई बार इन टेक्स्ट और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल खुद एक डेरिवेशन होते हैं। रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैट्स में वो सर्कुलर रिंग, वो कभी भी आपका डेरिवेशन नहीं था सिलेबस का, बट वो CBSE ने हॉर्स की कैटेगरी में डाल के उसे डेरिवेशन यानी न्यूमेरिकल की तरह यूज किया। ऐसे ही ये भी है, तो ये आपको NCERT इन टेक्स्ट में मिलेगा भाई, और ये बोर्ड में भी 3 साल आया है ये। सो NCERT इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, यू कैन चेक दिस आउट, एंड आई विल आल्सो गिव यू, जैसे ही हम लोग एंड में, सिंस आज पार्ट 1 का एंड होने वाला है, सो वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑन ACL। तो आपको 2 असाइनमेंट मिल गई है भाई पार्ट 1 की, एक प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर बायट-सेविट्स की असाइनमेंट जो आपको एक 10th क्लास से उठाई और एक जो मैंने आपको प्रोवाइड की, और एक ACL की असाइनमेंट, और हमारा पार्ट 1 फिनिश। तो इस असाइनमेंट में आई विल गिव यू दैट न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, ओके, कि वो कौन से ईयर में आया था, बट वो आपको इंडेक्स एक्सरसाइज में भी है। तो ये एक्सरसाइज है, बट इट इज इटसेल्फ अ डेरिवेशन, वो खुद एक डेरिवेशन है, तो मैं इसे फोर्थ एप्लीकेशन की तरह लेके चलूंगा। And the name of the fourth application that I am giving is magnetic field. Magnetic field due to thick wire. So आज हम लोग magnetic field due to wire निकालने वाले हैं। But सर ये तो पढ़ चुके हैं बायट-सेविट्स में, whenever the current passes through the wire, the magnetic field is being around। अब वायर स्ट्रेट है तो भी पढ़ा है, सर्कुलर है तो भी पढ़ा है, तो ऐसी क्या चीज अलग है जो यहाँ पे डिफरेंट है, एंड दैट थिंग इज थिक वायर। नाउ द पॉइंट इज दैट अब तक जितने भी वायर आप लोगों ने पढ़े, वेदर यू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सो दिस इज योर P पॉइंट, सो वी ऑलवेज फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द वायर और मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। डू वी एवर टॉक अबाउट द थिकनेस ऑफ द वायर? क्या हमने वायर की थिकनेस को कभी पढ़ा? नहीं, क्योंकि वायर को हम ऑलवेज थिन मानते हैं, एंड द थिकनेस ऑफ द वायर इज बीइंग वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू द डिस्टेंस। भाई P पॉइंट का डिस्टेंस के कंपैरिजन में थिकनेस बहुत कम है, तो ये हमारे लिए पार्ट काम नहीं किया। अब पॉइंट आउट करते हैं कि अगर वायर थिकर हो, थिकर मींस द रेडियस ऑफ द वायर इज दैट मच कंपैरेबल टू द डिस्टेंस पॉइंट। अगर P पॉइंट को हम कहीं पे लेते हैं तो वायर का थिकनेस कंसीडरेबल होना चाहिए। तो अगर वायर का थिकनेस अगर कंसीडरेबल है तो चलिए उसके लिए काम करते हैं। सो लेट अस कंसीडर a thick wire of radius small r carrying uniform current capital R,
तो चलिए थिक वायर कंसीडर करते हैं. सो आई एम कंसीडरिंग अ थिक वायर हियर. ओके, सो इंटेक्स एक्सरसाइज में जो आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन वही है, शायद मेरा डायग्राम उससे थोड़ा सा अलग होगा ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा हो. सो दिस इज योर थिक वायर. सो ये हमारा एक वायर है. दिस वायर हैज द रेडियस. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द वायर. ये हमारे वायर का क्या है? रेडियस. एंड इट कैरीज द I amount of current. So how much current it is being carrying? It is being carrying the I amount of current. Okay, so now if I gave you the index diagram, मैं साइड में इंडेक्स एक्सरसाइज का डायग्राम देता हूं क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने डायग्राम कुछ और बनाया, उन्होंने कुछ और बनाया. What they are taking? They are taking the front view of the wire. मैंने वायर को थोड़ा सा टिल्ट बनाया ताकि एक थोड़ा सा ना 3D इफेक्ट दिखाई दे, समझ में आए. और इंडेक्स एक्सरसाइज एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी ने वायर को सामने से देखा है. फ्रॉम वेयर दे आर लुकिंग? दे आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड. दिस इज द रेडियस. तो चलिए मैं दोनों डायग्राम को साइमल्टेनियसली लेके चलता हूं. बट इसमें करंट कहां आ रहा होगा? करंट वायर मतलब वायर सामने से. ओके, लेट्स सपोज दिस इज द वायर. This is being the radius. Now, if I am placing the wire exactly in front of you, अगर आप इसे सामने से देखते हो तो आपको कौन सा व्यू दिखाई देता है? सर्कुलर. आपको नहीं पता चलेगा करंट का, और आप रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते. तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके लिया सो दैट वो दोनों व्यू आ सकें. बट आप ऐसे भी जा सकते हो. ओके, तो आई विल गो विद बोथ द माय डायग्राम एज वेल एज द इंडेक्स डायग्राम. सो रेडियस आर कैरिंग द करंट. ओके, now we will find out the magnetic field at various position. The position P point. तो चलिए P point ले लेते हैं. So where the P point is? Outside. तो एक बार P point को बाहर लेंगे, एक बार P point को कहाँ लेंगे? On the surface लेंगे, और एक बार P point को कहाँ लेंगे? Inside. So we will find out the magnetic field outside the wire. We will find out the magnetic field on the wire, and we will find out the magnetic field inside the wire. ओके, तो चलिए तीनों केसेस पे काम करना शुरू कर देते हैं. अब लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो वी विल डिवाइड दिस इनटू द वेरियस केसेस. तो हम चलो इसे वेरियस केसेस पे लगाते हैं. सो केस नंबर 1, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द वायर. तो चलिए अप्लाई ACL, अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ. तो आउटसाइड है तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए पहले एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस कंसीडर. चलिए मैं इसको साइड में लिख देता हूं बिकॉज़ इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मिक्स अप होने वाला है. यहां पे लिख रहा हूं, लेट अस कंसीडर P point at distance small a from center of wire. इस बात को भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं. What is the distance of the P point? The distance of the P point is small a from the center of the wire. तो वायर के सेंटर से P point का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल. तो चलिए for the first case when the P is outside, what is the meaning of P outside? When the small a is greater than the radius of the wire. तो चलिए अप्लाई करते हैं. So for this we will apply an Amperian loop. इसके लिए हमारा एक Amperian loop होगा. और same for here, let us consider P point. एक P point और consider कर लेते हैं भाई. ये रहा P point, having distance a from the center जो कि बाहर है, और इसका Amperian loop कुछ इस तरीके से हो. As I told you बेटा, I am going to take both the diagram. Okay, आपको कोई एक बनाना है जो आपको ज्यादा feasible लगे. अगर आपको इंडेक्स का सही लगता है आप वहां से जा सकते हैं, और अगर आपको ये थोड़ा 3D व्यू के साथ जाता है, it is your choice. So A greater than R. So that's ACL for Amperian loop. For Amperian loop, B vector dot dl vector is equal to mu naught times of total current effect जो आपने इनक्लोज किया होगा. ओके, सो B into, सिंस एम्पीरियल लूप का शेप क्या है? फिर से सर्कुलर, तो लेंथ वेक्टर along the tangent
और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इट इज आल्सो अलोंग द टेंजेंट। चलो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेंथ वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इट वुड बी आल्सो अलोंग द टेंजेंट। वही चीज है जो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो थीटा कितना होगा, b dl cos 0 is equal to mu naught टाइम्स ऑफ टोटल करंट इफेक्ट। तो वायर के चारों तरफ आपने टोटल करंट इफेक्ट कितना लिया हुआ है, I, so it is being I। ओके, यहाँ पे एक जो पहला डाउट आपके दिमाग में आता है, द फर्स्ट डाउट लेट मी क्लियर, सर P इज आउटसाइड, तो हम आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड वीक नॉन यूनिफॉर्म, तो प्लीज इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं दैट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, बट यहाँ पे हम उस वीक और नॉन यूनिफॉर्म को भी कैलकुलेट करना चाहते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि ये बात एक वायर की हो रही है, ओके, नॉट फॉर द सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड के पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, इसलिए जो इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आउटसाइड की बहुत वीक, मतलब दोनों में डिफरेंस कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो अगर इनसाइड 100 टेस्ला है तो आउटसाइड वो 1 टेस्ला है, तो 100 के कंपैरिजन में 1 बहुत स्मॉल है तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आउटसाइड 1 टेस्ला है और इनसाइड 1.5 टेस्ला है तो ये इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो आउटसाइड अभी भी स्मॉल है 1 टेस्ला एज कंपैरिजन टू इनसाइड, लेट्स सपोज 1.5, बट डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई टर्न्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक वायर का बात हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे आउटसाइड को कंसीडर करेंगे। तो टोटल करंट I, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स और अदर फैक्टर्स है नहीं, सो इट वुड बी B आउटसाइड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट I, और dl का इंटीग्रेशन, dl मींस लेंथ, और यहाँ पे लेंथ ऑफ एम्पीरियल लूप, क्योंकि एम्पीरियल लूप पे लगा रहे हैं, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ एम्पीरियल लूप, a, सो इट वुड बी b into 2 pi a is equal to mu naught I, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर is mu naught I by 2 pi a। Am I clear with this point? Magnetic field outside the wire, and this is the same formula जो हमारी first application of ACL थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, एक P पॉइंट जो कि वायर से A डिस्टेंस पे दूरी है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही आया था म्यू नॉट I by 2 pi a। तो आई थिंक ये वही तो केस है that P point is at a certain distance from the wire, वो वायर से कुछ डिस्टेंस पे और वो डिस्टेंस A है, तो आई थिंक ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है। नाउ द पॉइंट arises for the case number 2 when point P is inside the wire, is inside the wire means small a is less than capital R। तो इस बार P पॉइंट अंदर है, और अगर P पॉइंट अंदर है, दिस इज द P पॉइंट, तो इस बार एम्पीरियल लूप अंदर बनेगा, तो दिस वुड बी योर एम्पीरियल लूप। तो चलिए यहाँ पे भी ले लेते हैं P पॉइंट अंदर, तो इसका एम्पीरियल लूप कुछ इस तरीके से होगा, तो दिस इज योर P पॉइंट, और P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना लेते हैं A। ओके, ये दो अलग अलग केसेस है बेटा। सो P पॉइंट पहले यहाँ था, अब P पॉइंट अंदर ले लिया हम लोगों ने। ओके, सो अप्लाई ACL, अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, सो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इफेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ओके, टोटल करंट इफेक्ट इनसाइड दैट एम्पीरियल लूप, यानी उस एम्पीरियल लूप ने कितना करंट इफेक्ट रखा है। तो नाउ द पॉइंट इज दैट ये हमारा पूरा वायर था, दिस वाज आवर कंप्लीट वायर जो सॉलिड है। ओके, और इस वायर में से कितना करंट आ रहा है, I is the amount of current and this current is always uniform, means whenever the current passes through any wire, जब भी आप किसी भी वायर से करंट पास करते हैं तो करंट ऑलवेज फ्लो अक्रॉस द एरिया। ये हमने बात की थी करंट डेंसिटी टर्म में, रिमेंबर करंट डेंसिटी मींस करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और उस टाइम मैंने डाउट क्लियर किया था कि डेंसिटी मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लेते हैं, बट सर आपने यहाँ पे एरिया लिया, तो वहां पे भी बात की थी कि करंट ऑलवेज फ्लो अक्रॉस द एरिया, इस एरिया से निकलेगा करंट। अब आपके पास करंट निकलेगा तो एक बात तो है,
whenever the current passes through this area, let's suppose it is 2 एम्पियर, तो ऐसा तो होगा कि नहीं कि 2 एम्पियर करंट, जैसे मैं मार्क कर रहा हूं, द 2 एम्पियर करंट वो केवल नीचे नीचे से आएगा, वायर के नीचे नीचे से 2 एम्पियर आ रहा है, ऊपर वाले हिस्से से करंट ही नहीं आ रहा. इट नेवर हैपेंस. द करंट जब भी किसी भी वायर से फ्लो करेगा तो वो अक्रॉस द एरिया जाएगा, एंड अक्रॉस द एरिया का मतलब वो यूनिफॉर्मली अक्रॉस द एरिया जाएगा, मतलब पूरे एरिया से. तो ये जो आई अमाउंट ऑफ करंट है वो पूरे एरिया से जा रहा था, पूरे वायर से. सो दस एक साइड में एक हिंट लिखता हूं, दस करंट थ्रू वायर, करंट थ्रू वायर, वायर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर से कितना करंट जा रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, कहां से, पाई आर स्क्वायर से. तो वन एरिया यानी यूनिट एरिया से कितना करंट जाएगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर. डेफिनेटली. अब हमें किसका करंट इफेक्ट चाहिए, वी वांट द टोटल करंट इफेक्ट. जब क्योंकि हम लोग एसीएल लगा रहे हैं, और एसीएल हम लोग किसके लिए लगाते हैं, वी अप्लाई दी एसीएल एम्पीरियन सर्किटल लॉ फॉर एम्पीरियन लूप. तो हमें करंट इफेक्ट चाहिए केवल इस एम्पीरियन लूप का. गॉटिंग दैट पॉइंट, we want the current of this Amperian loop. एक ऐसा एम्पीरियन लूप जिसकी रेडियस a होगा, क्योंकि P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से a सपोज करके चल रहे हैं. इस बार P पॉइंट अंदर हो गया, यानी a is less than smaller हो गया. लास्ट टाइम it was greater than. तो जब ग्रेटर था तो देखो यहाँ पे क्या है, it was air. वायर के चारों तरफ यहाँ पे क्या है, एयर. और ये पूरा का पूरा इसने इंक्लोज किया हुआ, तो जितना करंट वायर से आ रहा था उतना ही इस एम्पीरियन लूप का, क्योंकि यहाँ तो हवा है. बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार पूरे वायर से आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा था, वो आ रहा था पूरे वायर से. इस बार हमें केवल इस एम्पीरियन लूप को पढ़ना है. तो ये जो वायर का शेडेड पार्ट बच गया, ये जो वायर का हिस्सा बच गया, तो इसका तो करंट हमें नहीं चाहिए. वी वांट ओनली द करंट इफेक्ट ऑफ दिस एरिया, दिस एम्पीरियन लूप. So current through Amperian loop, Amperian loop यानी एरिया कितना है, पाई a स्क्वायर से कितना करंट होगा. लेट्स सपोज इसके करंट को I डैश ले लेते हैं. तो बताइए, पाई आर स्क्वायर से I करंट है, तो 1 से I बाई पाई आर स्क्वायर. तो पाई a स्क्वायर से कितना होगा, ये 1 से था, तो पाई a स्क्वायर से we will multiply. तो बताइए इस सेलेक्टेड रीजन यानी एम्पीरियन लूप का करंट कितना हुआ, I into a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. I hope you are getting that point. We uses the unitary method. हम लोगों ने unitary method यूज किया है. ओके, बुक में शायद एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में आप देखें तो आपको शायद ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, दैट हम एम्पीरियन लगा रहे हैं तो इट वुड बी b dl cos 0, अगेन cos 0, क्योंकि लेंथ वेक्टर फिर अलोंग दी टेंजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी टेंजेंट, क्योंकि एम्पीरियन लूप फिर से सर्कुलर है. तो b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश. तो बुक में शायद ये डायरेक्ट लिखा हो, और I डैश की वैल्यू पाई a स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो हम लोग कई बार समझ नहीं पाते ये आया कहां से, कि सर यहाँ पे I करंट क्यों नहीं ले लिया, आप I डैश क्यों ले. तो बेसिकली हमें वो करंट इफेक्ट चाहिए जो जहां पे हम लोग ACL लगा रहे हैं. वी वांट दैट करंट इफेक्ट वेयर वी आर अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटल लॉ. और एम्पीरियन सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इज बीन अप्लाइड फॉर एम्पीरियन लूप. और यहाँ पे हम लोग इस लूप को पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द P पॉइंट. कहां पे ले रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग द P पॉइंट इनसाइड व्हेन द A इज लेस देन R. तो अगर अंदर है तो केवल इस शेडेड पार्ट का करंट चाहिए, बाकी का नहीं. बट I करंट किससे आ रहा था, पूरे वायर से आ रहा था, तो हमें तो केवल इतने हिस्से का चाहिए. तो हमने भाई देखा सर पाई आर स्क्वायर पूरे वायर से कितना करंट आ रहा है, I. तो हमें केवल करंट चाहिए कितने का, अगर मैं इसका छोटा सा रीजन दूं, if I give you the idea, we need the current of only this part. पहले करंट पूरे से आ रहा है, पूरे से I आ रहा है, बट हमारा एम्पीरियन लूप तो ये केवल स्मॉल हिस्सा है, व्हेन A इज लेस देन R. तो हमें करंट केवल इस शेडेड पार्ट का चाहिए. तो उसके लिए हम लोगों ने यूनिटरी मेथड लगाया, जो आप लोगों
ने प्राइमरी क्लास में सीखा था कि पाई आर स्क्वायर से इतना है तो 1 से कितना होगा, तो एम्पीरियल लूप का एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर से कितना होगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट वुड बी b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो b dl मींस द लेंथ, बट किसकी लेंथ एम्पीरियल लूप, और एम्पीरियल लूप की लेंथ कितनी हो गई 2 पाई a म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 1 a cancel with the a, so magnetic field outside, so magnetic field inside कितना हुआ म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। This is the formula. This is the formula for magnetic field inside the wire. Wire के अंदर magnetic field कितना है, and this is the formula magnetic field outside the wire. तो आउटसाइड आपका ये है और इनसाइड आपका ये है, तो आउटसाइड में एक रिलेशन दिख रहा है दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड A, what was the A was the distance of the P point from the center wire. So A के साथ आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिलेटेड है इनवर्सली, यानी बाहर जैसे जैसे A बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, बट इनसाइड अगर आप लोग चेकआउट करें तो B इनसाइड आपका A के साथ कैसे रिलेट है डायरेक्टली, और ये तो आप जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं तो अदर फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, तो बताइए अदर फैक्टर वाज द I, सो I वाज द यूनिफॉर्म करंट जो वायर से आ रहा था वो सेम है। सेकंड R स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ वायर, वो भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब A के साथ आप अंदर डायरेक्टली को, यानी अंदर जैसे जैसे इनसाइड जैसे जैसे A यानी P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से बढ़ता जाएगा तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ओके बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कब तक बढ़ती रहेगी जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते, और जैसे ही आप आउटसाइड जाते हो आउटसाइड जाते ही मैग्नेटिक फील्ड A के साथ इनवर्सली फिर वो डिक्रीज होती जाएगी, बट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए वो जो ग्राफ का कर्व है वो थोड़ा सा स्लाइटली नॉन यूनिफॉर्म स्लोप से जाएगा, वो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे, बट बिफोर दैट दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये 2 बार से 3 बार रिपीट हो चुका है। सेकेंडली हॉर्स कैटेगरी का बिलोंग है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं ये देखते हुए कि ये डेरिवेशन का हिस्सा ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट यही सोचते हैं सर ये तो डेरिवेशन है ही नहीं, क्योंकि आप जब डेरिवेशन की लिस्ट देखते हो, जब आप ओके आउट ऑफ यू किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी रेफरेंस बुक तो होगा आपके पास, आइदर आपके पास एसएल है, आइदर आपके पास एनसीईआरटी है और एनी अदर, आप अपनी उस रेफरेंस बुक को चेक कीजिए, एसएल है तो एसएल अरोड़ा को चेक कीजिए, जहां पे आपके डेरिवेशंस किए हुए हैं आपको ये यहां पे नहीं मिलने वाला है, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट दैट। आपको ये कहां मिलेगा, आपको ये मिलेगा कहां पे जस्ट न्यूमेरिकल में, जहां पे एसीएल की एप्लीकेशन खत्म हो गई उसके बाद उसके प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स आएंगे, और उन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स के बीच में ये छुपा पड़ेगा क्वेश्चन। सो द पॉइंट इज दैट कि हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल को इतना स्लाइडली नहीं दे, हम ये देखते हैं प्रैक्टिस किया ठीक है, हम डेरिवेशन की तरफ सबसे ज्यादा फोकस रहते हैं, और ये सबसे पहली प्रायोरिटी है, पहले डेरिवेशन समझना है, उनको अंडरस्टूड करना, उनके की पॉइंट्स, और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा लाइक दैट इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो इलेक्ट्रिक रिंग का डेरिवेशन था ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक रिंग, तो जो हमने वहां पे किया उसी को जैसे उसको ट्रीट कर रहे हो एज अ डेरिवेशन, प्लीज इसको भी ट्रीट कीजिए एज अ डेरिवेशन। तो मैं इसे हमेशा एज अ डेरिवेशन की तरह ही करता हूं, ठीक है। तो इसे न्यूमेरिकल मत मानो, इसे ये मानो ये हमारे सिलेबस का एक डेरिवेशन है। आई नो इससे एक बढ़ जाता, हमें लगेगा कि हमारा एक डेरिवेशन एक्स्ट्रा है, बट ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई का हिस्सा है। तो अगर आप इसे न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करते हैं, आप इसे ये देखेंगे अच्छा न्यूमेरिकल है चलो बाद में कर लेंगे, तो ये लेफ्ट रह जाता है, वहीं पे छूट दिया जाता है। बट अगर डेरिवेशन की तरह है तो आई हैव ऑब्जर्व दैट कि आप लोग इसे थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, जब हम बोलते हैं ना ये एप्लीकेशन। सो आई विल टेक दिस एज अ एप्लीकेशन, और मैंने इसे एक नया नाम दे दिया, वो सीधी सी बात है, मेरा बुक में इसका नया नाम है इट इज द 4th एप्लीकेशन ऑफ द एसीएल। गॉट इट?
सो डायग्राम, दोनों डायग्राम मैंने बना दिए। ये डायग्राम आपको इन टेक्स्ट में मिलेगा, ये डायग्राम मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आउट ऑफ बोथ द डायग्राम जो आपको पसंद है आप किसी भी एक डायग्राम के साथ जा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। प्लीज इस कंटेंट को भी जरूर लिखना है, अगर बुक में नहीं लिखा हुआ है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो प्लीज एड ऑन दैट एंड राइट डाउन द बोथ द कंक्लूजन। गॉट इट? प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ इफ यू हैव नोटेड डाउन, आपने इसे डन कर लिया, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। एंड हियर इज द ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ B वर्सेस A, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, उस P पॉइंट के डिस्टेंस का ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल on the x-axis we have A, on the y-axis we have magnetic field. What is that point? This is the point when A is 0. And what was the A? A was the distance of the P point from the center. तो अगर आपका A 0 है, इसका मतलब आपका P point कहाँ पे है? सेंटर पे है, सेंटर ऑफ वायर पे। सेंटर ऑफ वायर, नॉट द सेंटर ऑफ लूप। लूप अलग चीज है, ये वायर का सेंटर है। ओके, सो वायर के सेंटर पे तो अंदर है, और अगर A 0 हो गया तो A 0 है तो B इनसाइड कितना? 0, तो इट वुड बी 0। नाउ जब तक आप इनसाइड हो, इनसाइड हो मतलब जब तक आपका वायर, लेट्स सपोज दिस इज द वायर, ये हमारा वायर है और ये वायर का सेंटर है, एंड दिस इज द रेडियस। तो जब तक आपका A लेस देन R है, टिल द A इज लेस देन R, मीन जब तक हम इनसाइड हैं, B A के साथ कैसे है? डायरेक्टली। तो सेंटर पे 0, so the graph will start from the origin and it is directly proportional, so the graph will go in a straight line. So B is directly proportional to A. Got it? ये पहुंचा सरफेस पे। अब जैसे ही सरफेस को क्रॉस करेंगे, so this was when A is less than R. Now when A is greater than R. But when the A is being greater than R, means when we are outside, the magnetic field is inversely proportional. But outside आप लोग जानते हैं magnetic field non uniform होगा, तो ग्राफ इनवर्सली है तो स्लोप will be negative, but non uniform तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, यानी ग्राफ is not going to be a straight line, it is going to be a curved line. I hope you are getting my point. आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे A बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ओके, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है, दिस B कैन बी 0 व्हेन A इज इंफिनिटी। B आउटसाइड 0 हो सकता है जब A इंफिनिटी हो जाए। अब इंफिनिटी को तो आप ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, आप दिखाई नहीं सकते वेयर इज इंफिनिटी, तो इसका मतलब आपका ग्राफ नीचे टच नहीं होना चाहिए बाहर, क्योंकि वो टच केवल वहीं पे होगा, यानी B 0 तभी होगा जब A इंफिनिटी होगा, तो वो प्लॉटिंग में तो आएगा नहीं ना। सो दैट्स व्हाई डू नॉट टच द ग्राफ ऑन द A आउटसाइड, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ B वर्सेस डिस्टेंस और द सेपरेशन। गॉट इट? तो ये प्लॉटिंग इसके साथ जरूर आनी चाहिए। ये वैसी प्लॉटिंग है जैसे आप लोगों ने किसके साथ की थी? स्फेरिकल, गॉस की थर्ड एप्लीकेशन थी ना, E वर्सेस R, और ये है आपका B वर्सेस R बोलिए या A बोलिए। ओके, R यहाँ पे हमने रेडियस ले लिया है, तो A हमारा डिस्टेंस चल रहा है। गॉट इट? तो ये ग्राफ इसके साथ ही आएगा। पॉइंट है? ओके, नाउ अब एक छोटी सी चीज। ओके, आफ्टर दिस प्लीज प्लॉट द ग्राफ आल्सो, ये एक मैंडेटरी पार्ट है, जरूर आपको ड्रॉ करना है। अब आ जाता हूं मैं आपका एक छोटी सी चीज जो मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, एंड टिल नाउ आई विल से द जो भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा होता है, तो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में अब तक की थ्योरी अगर मैं बताऊं तो फॉर द 12th क्लास अब तक आपके वर्सेस सेपरेशन इन द 12th क्लास एनीथिंग वर्सेस सेपरेशन के 3 ग्राफ आ चुके हैं। द फर्स्ट ग्राफ वाज E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन। तो हमारा ग्राफ कैसे शुरू हुआ? अ स्फेरिकल बॉडी, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, वो हमने रीजन पढ़ा हुआ है, सरफेस पे होगा, और उसके बाद ग्राफ इज गोइंग टू बी कर्व बिकॉज इट इज बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। याद है? E वर्सेस R, गॉस थर्ड एप्लीकेशन। ओके, फिर हमारा सेकंड ग्राफ था V वर्सेस R, पोटेंशियल वर्सेस सेपरेशन फॉर अ स्फेरिकल बॉडी और फॉर अ बॉडी। ओके, सो
inside the potential is constant, अंदर potential constant वो reason होगा, and outside it is going to be curve. V is being inversely proportional to R और वो भी non-uniform. So it was V versus R, and this is your B versus R means separation, और यहाँ पे separation को हमने A लिया है क्योंकि यहाँ पे हम R को represent कर रहे हैं radius की form में. Okay, so this is the point जो आपके सामने available है. तो देखो तीन ग्राफ E versus R, V versus R and B versus R. अगर आप R को separation लेते हैं तो नहीं तो A भी चलता. तो देखो तीनों ग्राफ में आउटसाइड हमेशा स्लोप नेगेटिव है, इधर स्लोप ज्यादा है, इधर दोनों का स्लोप एक जैसा ही है. बट जो मेन इश्यू है वो इनसाइड का है. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, बट इनसाइड द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली. ये तीनों का पॉइंट जो अंदर वाला है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है जो हम ग्राफ में फंस जाते हैं. बाकी ग्राफ एज यूजुअल जैसे मैं आपसे बात करता हूं ना, जो भी बाकी अदर ग्राफ है जो भी हमने आज तक बनाए वो बिल्कुल अलग है, हमने देखे हैं वो अलग बन जाता है. चाहे आप Q वर्सेस V बोलिए, कैपेसिटेंस वाला, ओम्स लॉ का ग्राफ बोलिए, जो भी है वो ठीक है. बट द पॉइंट यहां से फंसना शुरू करते हैं हम लोग इन तीनों ग्राफ में. तो इसलिए मैं आपको पहले वॉर्न भी करता हूं और अभी बता भी देता हूं. अब हमारे तीनों ग्राफ हो चुके हैं वर्सेस सेपरेशन के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, पोटेंशियल भी और मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट. और ये 2019 मींस प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर में था, ये आप चेकआउट कर सकते हैं. इन द नीट पेपर इट वाज बीन आस्क्ड व्हाट इज द करेक्ट, आप उसे चेक कर सकते हैं. आई विल शो यू लेटर ऑन जब हम ऑब्जेक्टिव और बाकी अदर चीज पे आएंगे इन फ्यूचर, जब हम फेस टू फेस मिलेंगे आप मुझे रिमाइंड करवाना. द क्वेश्चन वाज what will be the variation of B versus the separation for a thick wire, और ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D कुछ रैंडम बना दिए. तो रैंडम तो बिल्कुल अलग था, हम यहाँ पे फंस गए. और ये तीनों ग्राफ बना के दिए थे, आप चेक कर सकते हैं. तो हम हमेशा अगर ऑब्जेक्टिव में इन ग्राफ्स पे आता तो आपको फंसाएगा जरूर, और अगर आपसे ड्रॉ भी करवाता तो भी हम फंस जाते हैं कि अंदर क्या है. तो मेन इस बात को थोड़ा सा याद रखिए. टिल सो दिस इज आवर B वर्सेस R एंड दिस इज द वार्निंग बुलाइए या फिर आपको प्रीवियस एक्सप्लेनेशन रिमाइंड करवाना था. नाउ दैट इज होल अबाउट द व्हाट, the application of ACL, and now I can officially announce that part 1 is being done. Part 1 is completed. Magnetic field part 1 is done. So now you will get an assignment. So in the description box you will get the assignment of Ampere circuital law. तो Ampere circuital law की assignment आपको description box में मिल जाएगा. You can note it from here. आप वहां से असाइनमेंट को कीजिए प्लीज. असाइनमेंट इनफाइनाइट वायर, सोलेनॉइड, टॉरॉइड और थिक वायर के न्यूमेरिकल्स को देखिएगा. ओके, इसके बारे में बता देता हूं. मैंने कहा ये खुद एक न्यूमेरिकल है बेटा. इट इज इटसेल्फ अ न्यूमेरिकल. अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एग्जाम में आता है तो जो क्वेश्चन आपको मेंशन होगा, द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू हैव, the question will be the same language जो आपको अवेलेबल होगा. तो if I say you, तो जिनके पास NCERT अवेलेबल है वो NCERT की इंडेक्स एक्सरसाइज पे देखें, और जिनके पास SL अवेलेबल है, if I give you the reference line, so example 33 पेज नंबर 4.26 SL अरोड़ा जिनके पास है, मैं वैसे डाल दूंगा तो आप याद रखिए. इन डिस्क्रिप्शन जो आपको असाइनमेंट मिलेगा ना, so in the assignment check the example number 33. example 33, इस बार एग्जाम्पल को चेक करेंगे. दिस एग्जाम्पल इज एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि वो खुद एक क्वेश्चन है. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, माय रिक्वेस्ट इज दैट व्हेन यू सॉल्व दिस डेरिवेशन, जब आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर देते हो तो इस एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, व्हाट द क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम्पल को आप अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे. प्लीज नोट इट डाउन इन द फेयर नोटबुक, क्योंकि ये खुद एक न्यूमेरिकल है. तो आपको ये भी रहेगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये खुद आएगा. ठीक है. हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक बी पार्ट और मिलेगा. यू विल गेट आल्सो द बी पार्ट. तो ए पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया, वो डेरिवेशन है. बी पार्ट न्यूमेरिकल है. व्हाट इज द बी पार्ट? न्यूमेरिकल. सो उसका सॉल्यूशन मुझे देखना है.
I want the answer of the part B of the example number 33 and as soon as you get the video, as soon as you complete the part 1, जब आप अपना काम कर ले, please send me the feedback of the answer soonly. तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिए, क्विक कीजिए, ताकि हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करें और हम अपने मैग्नेटिक को फिनिश लाइन तक लेके जाएं. जब हमारे पास मैं कहता फर्स्ट 3 यूनिट्स कंप्लीट, ये नहीं है कि वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, बट हम लोग एक माइलस्टोन को कंप्लीट कर चुके हैं. We will complete the milestone. First 3 units complete करना एक milestone को complete करने जैसा effectively. So please do that. तो example number 33 का क्वेश्चन लिखेंगे, पार्ट बी का सॉल्यूशन करेंगे फिर नोटबुक में और मुझे उसका आंसर फीडबैक में देंगे. Okay? So with that note, part 1 of the magnetic is finished. So complete कीजिए, जैसे ही आपको available मिलता है within the 1 day, then we will start with the part 2. Thank you very much.